Welcome class 10th. We are doing our chapter Introduction to Trigonometry. So continuing with the same chapter, today we are going to start with trigonometric identities. So before starting today's video, let me share its learning outcomes. After watching today's video, you will be able to prove trigonometric identities and you will be able to use trigonometric identities to prove other useful trigonometric identities. So our three trigonometric identities are sin square a plus cos square a is equal to 1, 1 plus tan square a is equal to secant square a, and 1 plus cot square a is equal to cosecant square a. So we will prove these identities one by one. First of all, we are going to prove the first identity, sin square a plus cos square a is equal to 1. This triangle is ABC, right angled at B. So we will apply Pythagoras theorem in this triangle ABC. We get BC square plus AB square is equal to AC square. Now dividing the each term of this by AC square, we get BC square over AC square plus AB square over AC square is equal to AC square by AC square. Now AB by AC means adjacent upon hypotenuse. AB by AC is adjacent upon hypotenuse, so it is cos A. And BC by AC opposite by hypotenuse, so it is sin A. So substituting these values, AC square by AC square बेटा हो गया यहाँ से 1, तो हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी. वी गेट sin square A plus cos square A is equal to 1. Now we will use the same equation to prove the next identity. Now we are going to prove second identity, 1 plus tan square A is equal to secant square A. Now in triangle ABC, right angled at B, again applying the Pythagoras theorem, we get BC square plus AB square is equal to AC square. Now dividing the each term of this equation by AB square, we get BC square by AB square plus AB square by AB square and then AC square by AB square. So here AB square और AB square तो cancel होके 1 बन जाएगा. BC by AB opposite upon adjacent. Opposite upon adjacent is tan A, and AC by AB, that means hypotenuse upon adjacent, that is secant A. So substituting the values, we get 1 plus tan square A is equal to secant square A. AB square by AB square बेटा 1 हो गया, BC by AB tan हो गया, तो उसका स्क्वायर है तो ये बन गया tan square A, और AC by AB secant A और उसका स्क्वायर था तो secant square A. Now moving on to third identity, 1 plus cot square A is equal to cosecant square A. Now again taking the same triangle ABC. So in triangle ABC, right angled at B, we again apply Pythagoras theorem. BC square plus AB square is equal to AC square. Dividing the each term by BC square, we get AB square by BC square plus BC square by BC square is equal to AC square by BC square. AB by BC, AB क्या है, एडजस्टेंट साइड BC है ऑपोजिट, तो ये हो गया cot A और AC by BC हो गया cosecant A. सो वी गेट BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो गया, तो 1 AB by BC इज cot A, तो उसका स्क्वायर था cot स्क्वायर A इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर. सो दिस इज आवर थर्ड आइडेंटिटी. सो आवर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर sin square A plus cos square A is equal to 1, 1 plus tan square A is equal to secant square A, 1 plus cot square A is equal to cosecant square A. Now question number 1, exercise 8.4. Express the ratio sin A, secant A, tan A in terms of cot A. बट इन सबको हमने cot की फॉर्म में हमने इसको चेंज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक sin A. साइन को हमने कॉट में चेंज करना है, तो साइन हमारा किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट का, कोसेकेंट ए. तो अभी अभी हमने आइडेंटिटी की है, आइडेंटिटी नंबर 3 अगर हम देखें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए. तो इस आइडेंटिटी का भी हम यूज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, आइडेंटिटी लिख लेते हैं पहले हम. इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए. तो बेटा यहाँ से कोसेकेंट स्क्वायर ए हमारे पास वैल्यू है, तो कोसेकेंट ए क्या होगा, इसको स्क्वायर हटा देंगे तो रूट बन जाएगा.
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट ए की वैल्यू होगी रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. नाउ वी हैव कन्वर्टेड साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. नेक्स्ट इज सीकेंट ए. तो बेटा सीकेंट ए किसका रेसिप्रोकल है, कॉज ए का. ओके और सेकेंडली हमने एक आइडेंटिटी की थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए. तो हम यहाँ पे हम टेन को 1 बाय कॉट लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 ओवर कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए. सो टेकिंग द एलसीएम, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए. तो यहाँ से सीकेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसका रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए. तो डिनोमिनेटर के कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे, कॉट ए. सो सीकेंट ए कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ओवर कॉट ए. एंड द लास्ट वन इज tan a. tan a इसका रेसिप्रोकल क्या था, कॉट, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट ए. सो वी हैव कन्वर्टेड ऑल द 3 trigonometric ratios in terms of cot. Now question number 2, write all the trigonometric ratios of angle A in terms of secant A. अब हमने हर एक रेशियो को secant की फॉर्म में चेंज करना है. Let's start with sin A. तो पहली हमारे पास आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1. तो बच्चे साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो कॉस किसकी वैल्यू है, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का, तो ये 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर ए हो गया. नाउ सीकेंट स्क्वायर ए एलसीएम, वी गेट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. नाउ इट्स स्क्वायर, तो इसको खत्म करने के लिए वी विल टेक द स्क्वायर रूट. वी गेट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर ए. तो जो डिनोमिनेटर का सीकेंट स्क्वायर है इसको हम सीकेंट ए लिख देंगे स्क्वायर रूट के बाद, और न्यूमरेटर कम्स आउट टू बी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. नाउ नेक्स्ट कॉज ए. तो कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का, तो उसको हम सीधा ही 1 अपॉन सीकेंट ए लिख सकते हैं. साइन हो गया, कॉस हो गया. नेक्स्ट वैल्यू इज tan ए. तो हमने आइडेंटिटी की है tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए. तो यहाँ से tan ए की वैल्यू के लिए इसका रूट ले लीजिए. इट विल बी रूट ऑफ 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए. नाउ आफ्टर दैट कम्स कोसेकेंट ए. तो बेटा कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, 1 बाय साइन ए. तो अभी अभी हमने साइन की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए. It will give you secant A over root of secant square A minus 1. Then comes cot A. Cot किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो 1 अपॉन tan A. और tan की वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 ओवर रूट ऑफ 1 प्लस secant square A. So all trigonometric ratios are expressed in the form of secant A. Now moving on to question number 4, choose the correct option and justify your answer. First part is 9 secant square a minus 9 tan square a. बेटा इसमें से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, secant square a माइनस tan square a. Now we have done the identity that 1 plus tan square a is equal to secant square a. If we shift tan to this side, we will get 1 is equal to secant square a minus tan square a. Put this value in 1, put in 1, we get 9 into 1, क्योंकि secant square a minus tan square a कितना है 1, 9 into 1 is 9.
So our answer is B part, 9. Now moving on to second part, 1 plus tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta minus cosecant theta. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा, साइन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। हम इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया। सिमिलरली कॉट थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कोसेकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट में बेटा जी हमारे पास कॉस थीटा एलसीएम हो गया, वी गेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और सेकेंड ब्रैकेट में साइन थीटा एलसीएम हो गया, वी गेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब अगर इन दोनों ब्रैकेट को आप ध्यान से देखोगे, डिनोमिनेटर तो सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस, न्यूमिनेटर देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ऐसे मैंने साइन थीटा कॉस थीटा को ब्रैकेट में लिख दिया। और सेकंड वाले में भी हम ऐसे लिखेंगे, इनटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो ये हो गया पूरा आपका A, और ये हो गया B, ये हो गया A एंड दिस इज B। तो हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है ये A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A की जगह लिख दिया हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और B की जगह माइनस 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे हम A प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, A स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या था हमारे पास, फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारे पास, फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, इसकी वैल्यू हो गई 1 यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 और 1 कैंसिल, so we are left with 2 sin theta cos theta over sin theta cos theta। बेटा कैंसिल हो गया sin theta cos theta, so answer is 2, so C part is its answer। Now next, सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। बेटा इसमें फिर से क्या करेंगे, हम सीकेंट ए को 1 बाय कॉस ए लिखेंगे, और टेन ए को साइन ए बाय कॉस ए, एंड 1 माइनस साइन ए। चलिए फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम हो गया कॉस ए, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, और सेकेंड ब्रैकेट हो गई 1 माइनस साइन ए। अगर आप फिर से न्यूमिनेटर ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या बन रहा है, A प्लस बी ए माइनस बी, वो क्या होता है हमारे पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे A है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस B है साइन ए माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस ए, सो वी गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस ए। बेटा जी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर A आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर A, साइन A को हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया, सो वी गेट, हम इसको क्या लिख देंगे अब, कॉस स्क्वायर A अपॉन कॉस A, कॉस A कैंसिल हो जाएगा,
सो वी विल गेट cos A। तो हमारा आंसर आ गया डी पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, कोसीकेंट स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर 2 और 3। तो हम सीकेंट स्क्वायर को लिखेंगे 1 ओवर cos स्क्वायर ए, और कोसीकेंट स्क्वायर आ जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। कोसीकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल और सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल। सो वी कैन राइट इट एज 1 ओवर cos स्क्वायर ए इंटू, ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए। दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए ओवर cos स्क्वायर ए, और साइन ओवर cos क्या होता है, tan। सो आवर आंसर इज tan स्क्वायर ए। So with this we have finished question number 4. You will revise all these questions along with the examples of exercise 8.4. Thank you.